Praise the Lord. Hallelujah. सबसे पहले ईश्वर के धन्यवाद देने से कि काय इमाम भाल दिन देश आमिर खान के and before I go to the word, let's look to the God in prayer. Let's surrender ourselves into His word. Our gracious Heavenly Father, I come to you, Lord. I pray that as I speak your word, Lord Jesus, you speak through me. Holy Spirit, I ask you to open our mind and our thoughts and our processing so we can understand, all of us, in your name, Lord Jesus. And Holy Spirit, we ask you to work even with the language, even in every way, Lord Jesus, so we can understand in every way that you want us to understand, Lord Jesus. Lord, I pray that at this time, that this word will be meaningful for all of us. In Jesus' mighty name, I ask this prayer. Amen. We have, as pastors, spiritual leaders, we have been visiting. हम लोग अलग अलग जगह में विजिट कर रहे हैं, जैसे बर्थडेज के लिए, एनिवर्सरीज के लिए, विजिटेशन मॉर्निंग में, इवनिंग में. सो एवरी टाइम मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था, बिकॉज जब भी हम लोग आपको प्रेयर पॉइंट्स का टाइम देते हैं, राइट, जब हम प्रेयर पॉइंट्स का टाइम देते हैं तो बर्थडेज में, एनिवर्सरीज में, इट वॉज पॉइंटेड आउट टू मी. सो आई थॉट दैट व्हाई डोंट आई मेक अ सर्मन आउट ऑफ इट. सो द पॉइंट वॉज, now brother or sister, we will give you time, and then if you have any prayer points, then you can share with us. So usually 99.8% सबका prayer point इस तरह का होता है कि pastor please pray for me that next birthday भी हम लोग अच्छी तरह से सुरक्षित हो सके. And then in your anniversaries, that till next anniversaries will be more blessed. And then long life. Lord, give the pastor, please pray that we'll have a long life. So, आज का जो point है, वो है beware of long life. Beware of long life. So, हमको long life में ध्यान देना है कि अगर हम long life मांग रहे हैं, तो क्यों मांग रहे हैं? आमिर खान पूछिए से ना, आमिर खान किन्हीं का long life मांगिया से? Sir, that is the one question. Today, we often hear people praying, Lord, give me long life, but rarely we do hear people asking that, Lord, why do you want to give me a long life? हम हमेशा ये long life मांगते हैं कि प्रभु तू हमको long life दे, पर हम ये नहीं मांगते हैं, हम ये नहीं कहते हैं प्रभु से कि प्रभु तू मुझे लंबी जिंदगी क्यों देना चाहता है? This is the biggest question. And in our Christian circles today, long life हमारे जीवन में हम लोग ये सोचते हैं कि long life एक blessing का कारण है. Yes, it's a gift. और enjoyment और success और personal dreams के लिए हम लोग long life को use करते हैं, right? We use long life for this kind of purposes. I'm not saying this is bad, but is it good enough? That's a question. Long life is not given for selfish thing, it is given granted for God's purpose. आज ये तो आमिर खान लगा life थे, अगर आमिर खान बेशी bless से long life करने, तो ये तो because of Jesus, because of God, and it is for Him. Amen. Amen. So आमिर खान लगा life थे, तो long life ईश्वर करने से. So long life is a gift, but be careful what do you do with it. आमिर खान लगा लाइफ थे तो लॉन्ग लाइफ इट बेशी ভাল गिफ्ट আছে और आमिर खान কি করে তো লং লাইফ it to be important আছে. Let's move on to the first point. It says long life is a gift but with a purpose. Amen. itu তো gift আছে বেশি সুন্দর বেশি ভাল লাগা gift আছে, but itu purpose itu life তে তো একটা purpose भी আছে. Please take out with me Psalms 91:16. Everyone, please. I know it's written there, but it is only written there, but it's not full by verses there. So let's read it. Psalms 91:16. What it says? It says that with long life I will satisfy them and show them my salvation. Amen. Who is saying this? God. To God's
कोई ऐसे कि I will satisfy him with long life. Who? Us. He will satisfy with long life. But why? So just we can build a house, we can retire nicely? No. हम लोगों को लॉन्ग लाइफ इसलिए चाहिए कि हम आराम से रिटायर्ड हो जाए और आराम से ज़िंदगी जिए? नहीं, हमको लॉन्ग लाइफ इसलिए चाहिए ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। हालेलुया। सो द पर्पस ऑफ लॉन्ग लाइफ इज ओनली जीसस। हम लोग बोलते हैं किसी को जब लाइफ में होते हैं, कभी लड़ाई जाती है, अरे ये सोचता है कि इसके चारों ओर दुनिया घूमती है। हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं किसी के लिए भी, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर के सामने दुनिया घूमती है। यीशु मसीह में हमारी दुनिया है, यीशु मसीह में हमारा सब कुछ है। यीशु मसीह सेंटर में है और हमारी जिंदगी में उसके चारों ओर घूम रही है। और समटाइम्स वी नेग्लेक्ट, सेंटर से हटा करके यीशु मसीह को साइड में रख देते हैं। To reveal salvation, to walk with God, to glorify Him. God will reveal salvation when we use our life for Jesus. He will show us। हम लोग अपनी जिंदगी को लेकर के चुपचाप नहीं बैठेंगे। जब प्रभु का काम हमारे जीवन में होगा, हमारी लॉन्ग लाइफ में, हमारी लाइफ में, हम लोगों को बताएंगे। We will witness the people and we will give the testimony to the people. So one warning is also there. Beware, don't waste what heaven give you for eternity. सावधान हो बोलागे, हेवन की दिया से हमें खान के लॉन्ग लाइफ तो वेस्ट ना कोई भी तो बहुत बड़ा यूज करी बोलागे ईश्वर खाने। आमीन। Second point, it says that a life is given to proclaim, not just to survive. हमें खान लगाए लाइफ तो प्रोक्लेम करे बोलागे, ईश्वर का नाम तो प्रोक्लेम करे बोलागे। तो जस्ट हम क्या कर रहे हैं आजकल? ब्रदर क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? बस जी रहे हैं। हमको ये नहीं करना। We don't have to just live, we have to live for Christ. Hallelujah. Psalms 118:7 it says, I shall not die, but I shall live and recount the deeds of the Lord. Amen. अगर आप और मैं प्रभु के लिए जिंदा हैं, तो हम लोग नहीं मरेंगे क्योंकि हम प्रभु के लिए जी रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एक दिन मौत नहीं आएगी। We all have to die. अभी हम आगे धीरे धीरे जो पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि हमारी लॉन्ग लाइफ किस चीज के लिए है। अभी तो मैं बता रहा हूं कि प्रभु के लिए हम लोग I shall not die but I shall live। मुझे मरना नहीं है प्रभु, मुझे जिंदा रहना है। किस लिए? ताकि मैं प्रभु के कामों को देख सकूं अपने जीवन में। आमीन। When God adds air to your life, He expects you to add praise to your mouth। जिदिया था है ईश्वर अपनी की जिंदगी दिए, उसी समय में प्रभु चाहता है कि हमारे मुख में प्रेज भी हो। प्रभु ये नहीं चाहता है हमको जबरदस्ती प्रेज करना है। आया आज सुनते हो अपने तो पीछे भाग, जबरदस्ती नहीं, मन से, विलिंगली। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, कभी सुबह जब उठ जाते हैं तो कितने धन्यवाद से भर जाते हैं। प्रभु आज का दिन प्रभु तेरे लिए। आज जब हम संडे को आते हैं, कितने लोग ऐसे होंगे कि जो बहुत खुशी से आ जाते होंगे, प्रभु आज का दिन प्रभु तेरा है, आज हम तुझे देंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सारा दिन उसके लिए बना दिया। आमीन। नाउ यस देयर इज अ सबत डे, but now every day is in Jesus is a Sabbath day. Hallelujah. Because Jesus became our rest. Now we don't have to worry that where we should keep the rest. Every day in Jesus is rest. Hallelujah. Now ask yourself, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, are you using your life to talk about problems or testify of His power? आप अपना लाइफ प्रॉब्लम के लिए जिंदा है, अपने लाइफ इसलिए जिंदा है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम जी रहे हैं और उसको कंप्लेन करना है, या इसलिए कि हर समय जब प्रभु आपको उस प्रॉब्लम से निकालता है, जब आप यीशु मसीह के नाम से उस प्रॉब्लम से लड़ते हो,
तो उसको टेस्टिफाई कर रहे हो कि नहीं? ये क्वेश्चन आपसे। A long life without testimony becomes a silent life. अगर हमारे जीवन में टेस्टिमनी नहीं है और हमारी जिंदगी बहुत लंबी है, तो it becomes a silent life. It's not doing anything good. I will tell you that. Good कौन है? God is good all the time. We say, right? जिसु भाला से होदाए टाइम, होदाए दिन, जिसु भाला से. So when He is good, everything around Him is good. अगर हम अपना टेस्टमनी, अपने जीवन को प्रभु की महिमा के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपना लाइफ से लोगों को टेस्टमनी दे रहे हैं, लोगों को प्रभु के वचन में आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, और प्रभु के चर्च में लेके आए अच्छी बात है लोगों को, पर प्रभु के राज्य में हमको लेके आना है, वो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो ही प्रभु की टेस्टमनी है। आमीन। लोगों को बचाना आज हमारा उद्देश्य है। Our purpose is to save people and to glorify God. Amen. Third, it says the long life comes with obedience and responsibilities. Spider-Man बोलता है ना, with great power comes great responsibilities, right? हमारे पास पावर है, वो है जीसस। हमारे पास लाइफ है जो यीशु ने दी है। It has a responsibility and obedience. बिना आज्ञाकारिता के, without obedience, हम प्रभु के वचन में नहीं चल सकते। Without strictness, आज हम enjoy करना चाहते हैं, yes, आज हम खूब आनंद करना चाहते हैं, yes, it's good, but strictness and obedience is very important in God's word, in this life. अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, स्ट्रिक्टनेस प्रभु को लेके आइए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, प्रभु आपको आशीष देगा, क्योंकि वो ओबीडियंस है। स्ट्रिक्टनेस किस चीज का? प्रभु के वचन का। वचन को तो पढ़िबो लागे, ভাল पढ़ा पढ़िबो लागे। अगर अपनी कान ভাল पढ़ा ना बुझे, एक बार और पढ़िबो लागे। होली स्पिरिट ने हेल्प मांगी हुई, होली स्पिरिट वो के हेल्प कर भी अपने लगा वचन मुझे बोला लगे, मुझे बता दे। So Holy Spirit help me. You know, today I am able to speak Nagamese. It's not because I prepared something in Nagamese. I am praying that Lord, when I speak, at least I will be able to deliver something in Nagamese so people will understand. Amen. It's not that I have to say Nagamese because impressing people. It is for the people to understand the word. मैंने कल प्रार्थना करा रात में कि प्रभु अगर मैं इंग्लिश भी बोलूं तो प्रभु जैसे एक्स चैप्टर 2 में बोलता है, they were speaking in their tongue but they were understanding in their language. तो प्रभु तू वैसा काम कर। That is the gift of tongues, right? Understanding with our own language, but if the person is speaking English or Hindi or anything, तो प्रभु हमारे मुंह को आशीषित कर देता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग खुश हैं कि नहीं? खुशी होने लगे तो Deuteronomy 6:2 it says that so that you and your children and your children's children may fear the Lord, Lord God, all the days of your life, and keep all His decree and His commandments that I am commanding you, so that your days may be long. अगर आपके जीवन में लॉन्ग लाइफ है, अगर आपके जीवन में बहुत आशीष है, अगर आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ये इसलिए हो रही हैं ताकि आप अपने बच्चों को और अपने बच्चों को, उनके बच्चों को ये बताएं कि प्रभु बहुत बड़ा है। हालेलुया। In ancient Israel, it is taken as the long life. That long life is a responsibility and it's a burden that we have to carry, क्योंकि हमारे जनरेशन को और नेक्स्ट जनरेशन तैयार करनी है। आज कौन कौन यीशु मसीह को जानता है? मैं हरा हाथ देखना चाहता हूँ। Who knows Jesus? आज आप पेरेंट्स हैं और कल जो बच्चे होंगे वो जो पेरेंट्स बनेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्या आप अपने जनरेशन को संसार में सर्वाइव करने के लिए बढ़ा रहे हैं या प्रभु के वचन में सर्वाइव करने के लिए बढ़ा रहे हैं? मैं जानता हूँ इस संसार में जीना जरूरी है, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। यस और नो? हम प्रभु के हैं, तो हमको प्रभु के हिसाब से चल रहा है।
प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। अगर आज आपके पास छोटे बच्चे हैं, उनको सिखाइए कि तूने दुआ करी नहीं करी। चेक योर देयर पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप, क्योंकि हमको वो देखना है। जब हम उनके रिलेशनशिप को चेक कर सकते हैं, जो वर्ल्डली रिलेशनशिप है, तो हम प्रभु के पर्सनल लाइफ को क्यों नहीं चेक कर सकते। आज हमको अपने बच्चों को एज ए पेरेंट्स सिखाना है कि भाई प्रार्थना करनी है, बहुत ज़रूरी है। माई ब्रदर वॉज सेइंग दैट इफ टुडे यू बिकम लीनियंट इन प्रेयर, टुमारो योर जनरेशन विल नॉट फील इट इज अ नेसेसिटी। अगर आज हम लोग लीनियंट बन जाएंगे प्रार्थना करने में, योर जनरेशन विल नॉट नो दैट व्हाट इज प्रेयर। प्रभु के वचन पढ़ना ये जरूरी है कि नहीं? ये जरूरी है। आज आपको अपने बच्चों को तैयार करना है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉन्ग लाइफ। इट इज नॉट स्मॉल थिंग, इट इज वेरी बिगेस्ट बर्डन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओबीडियंस। इन ओल्ड टेस्टमेंट, लॉन्ग लाइफ हैज टाइड टू ओबीडियंस एंड पासिंग ऑफ द फेथ टू द नेक्स्ट जनरेशन। अमित खान लगा विश्वास तो पास करी बोलागे नेक्स्ट जनरेशन पे। द क्वेश्चन इज, क्या आपका फेथ स्ट्रांग है इतना? क्या आप इस योग्य हैं कि अपने बच्चों पर वो फेथ पास कर सकते हैं कि नहीं? मैं आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप कमजोर हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं आप एक खुद से क्वेश्चन पूछिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए। यूथ्स जो यहाँ पे बैठे हैं, आप अपने आप को कहो कि जब मैं किसी अपने दोस्त को मिलता हूं, क्या मेरे लाइफ से मेरे दोस्त में यीशु मसीह का काम हो रहा है कि नहीं? ये जरूरी है कि आपको पूछना है अपने आप से। इट इज लिटिल बिट हार्श, बट ये पूछना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे तभी खुश होगा जब आप प्रभु का काम करेंगे। चर्च में आना प्रभु का काम है, लेकिन ये असली काम तब बनेगा जब ये बाहर जाके आप लोगों को बचाएंगे। आज हमको यहाँ पे तैयार होना है वचन के साथ। As leaders, as a spiritual leaders, learn through the spiritual leaders or leaders, और जो भी आपको मिले लर्न करने के लिए आप लर्न करिए ताकि आप लोगों को बचा सकें। आज जब मैं अपने ये यूथ्स के बीच में जब काम करता हूँ, जो those who are open to the work, आज मैं उनको जब टीचिंग देता हूँ तो टीचिंग में उसको इसलिए नहीं देता हूँ कि वो मेरे साथ चिपके रहे। मैं उनको टीचिंग ऐसी देता हूँ कि भाई जाके किसी को बताना है आज प्रभु का वचन, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो आपका जीवन व्यर्थ है। Please take out with me James chapter 5 verse 19 and 20. This is not in the projector. अभी मेरे दिमाग में आया, so I wanted to share you. I was recently sharing to Matthew about this. It says that, my brothers and sisters, if anyone among you wanders from the truth and is brought back by another, you should know that whoever brings back a sinner from wandering will save the sinner's soul from death and will cover a multitude of sin. Hallelujah. आज हम कई बार हम उनके पीछे पड़े हैं जो प्रभु को जानते भी नहीं। प्रभु कह रहा है, आपको पता है ना, 99 शीप थी और एक शीप खो गई थी, राइट? One sheep was lost and God was so happy when the one sheep came back, happier than those who were already there. आज हमको खोए हुए लोगों को लेकर आना। हमारे ही मसीही लोगों में से, हमारे ही क्रिश्चियन लोगों में से बहुत लोग खोए हुए, आज हमको उनको बुला के लेकर आना। एंड इट इज़ वेरी हार्ड जॉब। तो मैंने मैथ्यू को बोला कि मैंने कहा कि इसमें छोटी सी एक प्रॉमिस हिडन। वो हिडन क्या है प्रॉमिस? वो ये कह रहा है कि योर मल्टीट्यूड ऑफ सिन विल बी कवर्ड। आमीन। प्रभु का अनुग्रह सही नहीं, पर आप जब कर्म करोगे कि किसी को जो खोया हुआ उसको लेके आओगे यीशु मसीह के पास। चर्च में लाना यीशु मसीह के पास नहीं है। चर्च में केवल सर्विस होती है। यीशु मसीह के पास एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चर्च में लाना बेकार है। पहले आप उस व्यक्ति को प्रिपेयर करो कि चर्च में वो आ सके, चर्च में अपना टाइम दे सके, प्रभु की महिमा करे, एक दूसरे को आशीषित कर सके। आमीन। एंड देन तब प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। इट्स ए प्रॉमिस, इट्स ए ब्यूटीफुल प्रॉमिस। सबसे बड़ी बात क्या हम बचा रहे हैं? हम उसको मृत्यु से बचा रहे हैं। वी आर सेविंग दैट पर्सन फ्रॉम डेथ। एंड हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारा मल्टीट्यूड ऑफ सिन विल बी कवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के साथ हमको इतना काम करना है।
ये काम बाहर जाके हमको करना है, ये यहाँ पे बैठ के नहीं होने वाला। मेहनत करनी प्रभु की। लोगों के अंदर इमेजिन जो शीप लॉस्ट होती है वो कैसा नेचर होता है, वो डरी भी रहती है। एक जानवर भी अगर लॉस्ट होता है, अगर बिल्ली भी लॉस्ट हो जाती है, उसको अगर छिपा रहे हैं हम लोग, बचा रहे हैं, तो वो झपट्टा मारेगा ना। तो इमेजिन द लॉस्ट पर्सन, he might not be able to trust you when you are trying to bring that person into Christ again. That person will not able to rely on your word, but you have to work hard. फिर उसके बीच में काम करना है। वो बुरा आपको बक रहा है, तब भी आपको काम करना है। क्यों? क्योंकि प्रभु का काम। क्योंकि आप जब जेम्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है हैव मर्सी ऑन देम। हालेलुया। Even if you are judging, have mercy on them. Even if you are telling them that they are wrong, still have mercy. Because जब प्रभु हमको बचा सकता है तो वो कौन है? हम कौन है जो हम उसको इतना ज्यादा टॉर्चर करेंगे? वो कौन है जो हम उस व्यक्ति को नीचे करेंगे? प्रभु में हम उठाएंगे। हालेलुया। Now, the fourth point it says there, long life is for praising, not just existing. Isaiah 38:19 says, the living, they thank you as I do this day. Fathers, make known to your children your faithfulness. जो पिता हैं अपने बच्चों को बताओ कि प्रभु की फेथफुलनेस कैसी है। ये कौन कह रहा है? हिजकिय्याह। आप लोग जानते हैं हिजकिय्याह कौन था? हिजकिय्याह की लाइफ में परमेश्वर ने 15 साल और जोड़ दिए। He was dying and then he prayed to God and he asked for a few more years, but not few, he gave him 15 more years. And उसका पहला रिस्पॉन्स क्या था? The living, they thank you as I do with this day. Fathers, make known to your children his faithfulness. हमारा काम ये है प्रभु में, जब हमको आशीष मिलती है। अगर आप हॉस्पिटल में, अगर आपको जीवन मिला है उस हॉस्पिटल से वापस आने का, घर में आने का, आप बच्चों को बताएं कि प्रभु ने आपको लिखा है। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास बहुत पैसा होता है लेकिन हमारा पैसा हमारी जीवन को बचा नहीं पाता। केवल प्रभु का प्रेम हमको बचा पाएगा। अगर आप बच के आ रहे हो, हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड। प्रेज शुड बी देयर। आप जब प्रेज करोगे ना, प्रेज इज एंटीडोट टुवर्ड्स डिप्रेशन एंड एंजाइटी। आमीन। When you praise God, it becomes the antidote towards the डिप्रेशन एंड एंजाइटी। आपके जीवन में कितना भी एंजाइटी हो, आपके जीवन में कितना भी परेशानी हो, टेंशन हो, बस आप प्रेज करने लगिए। जो आनंद आपको मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा जो प्रभु की प्रेज में होता है। Beware, long life with praise is a life of, without praise is a life of ingratitude. अगर आपके जीवन में आप प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहे हो, अगर आप प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहे हो क्योंकि आप जिंदा हो, आप आशीषित हो, आपका लाइफ धन्यवाद से नहीं भरा। You are ingratitude. You are full of ingratitude when you are not giving thanks to God, His faithfulness. Now the fifth major point. Jesus didn't promise a long life but a full life. अब आप कोशिश करेंगे कि आप, इससे पहले क्वेश्चन करते ना, ये व्यक्ति बहुत अच्छा जी रहा था लेकिन suddenly that person died. ऐसा कैसे? प्रभु यीशु मसीह भी तो 35 प्लस जिया बस। He didn't live a long life, right? But is it a blessing or not? Jesus promised us to give a full life, not a long life. Full life means the purpose of life. प्रभु के हिसाब से जीना। प्रभु हमको आशीषित करना चाहता है ताकि वो हमारे लाइफ का पर्पस अपने लिए इस्तेमाल करे। There are many people of God, they died early, but doesn't mean that their life is bad. आमीन। कितने प्रभु के लोग जल्दी मर गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जीवन व्यर्थ हुआ। आज आप और मैं एक पर्पस संसार में है, वो पर्पस आप बना लीजिए, प्रभु मुझे वो पर्पस कंप्लीट करना है। पता है मेरे why I came in my mind this thing, this topic। मेरी मम्मी कह रही थी
बेटा हमको ना अच्छी तरह से जीना है, हमको और अच्छे प्रभु के लिए जीना है और ये करना है। मैंने कहा हमें लॉन्ग लाइफ में प्रॉब्लम ही होती है कि कब आप आगे जाके गिर जाओ, फिर उठना पड़ता है। मैंने कहा छोटी लाइफ प्रभु के लिए पूरा दो और चल दो यहाँ से, दैट्स बेटर। क्योंकि जितना जिंदा हम रहेंगे उतना हमको जजमेंट देना पड़ेगा उस लाइफ का। Imagine the Methuselah, right? He lived 900 plus years, the oldest in the Bible. अब इसमें वो कितना ज़्यादा प्रभु के साथ बना रहा होगा, 900 plus years, come on। हम 40 साल में ही गिर जाते हैं फिर उठ जाते हैं। तो प्रभु हमको अगर लॉन्ग लाइफ दे रहा है तो हमको उसको प्रभु के लिए यूज करना है। अगर हमारे पास कम लाइफ भी है उसको भी आप यूज करिए, निराश मत होइए, क्योंकि प्रभु के पास आशा है। आशा क्या है? आपके पास जीवन मिल रहा है, आपको अनंत जीवन मिल रहा है। यू आर गेटिंग द एवरलास्टिंग लाइफ, नॉट एवरलास्टिंग डेथ। तो प्रभु के साथ आनंद करिए, चाहे दिन कम हो चाहे ज्यादा हो। हालेलुया। अब आप जब प्रार्थना करें तो आप प्रार्थना ही करिए, प्रभु अगर तूने मुझे लॉन्ग लाइफ दी, मैं तेरे लिए यूज करूंगा उसको बस। और मुझे सिखा, होली स्पिरिट, तू मुझे सिखा कि मैं उसको कैसे यूज करूं तेरे लिए। आमीन। John 10:10, please take out with me. Jesus is saying the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Amen. अगर आप और मैं प्रभु के साथ जी रहे हैं, your life will be abundant and fruitful. If you are expecting a long life, give life to Jesus. Because हम खुद कहते हैं ना, life is uncertain, right? The worldly way is of saying it, life is uncertain, but in Jesus, life is certain to His favor. Hallelujah. अगर हमारा लाइफ अनसर्टेन है संसार में, तो प्रभु में आप डाल दीजिए लाइफ को, वो सर्टेन हो जाएगा यीशु मसीह में। आमीन। A long life without Jesus is a long road to judgment. A short life with Jesus is a life of eternal reward. Amen. I'm not saying that आप long life मांगना बंद कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो मैं इसलिए मुझे ये डालना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमारा थिंकिंग कई बार ऐसा है कि लॉन्ग लाइफ में अब हम जिएंगे आराम से, एक अच्छे से बीच में चले जाएंगे, राइट? ये कोई माउंटेन में घूमने चले जाएंगे। I'm not saying that is bad, पर क्या वो प्रभु को महिमा दे रहा है? लॉन्ग लाइफ में आप एंजॉय करिए, लेकिन एंजॉय के साथ प्रभु को भी याद रखिए, बिकॉज ही इज द वन हु गिव यू लाइफ। उसको देना जरूरी है ना वापस। जो वो देता है हमको उसको वापस भी देना है। प्रभु ने जो हमको आशीषित किया है, हमको उसको वापस भी आशीषित करना है, क्योंकि प्रभु चाहता है। प्रभु जबरदस्ती नहीं मांगता है, चाहे तो जबरदस्ती ना करे। तो फुल लाइफ इज इन क्राइस्ट इज ग्रेटर देन लॉन्ग लाइफ विदाउट हिम। एक और कोटेशन में बोलूंगा, 1,000 people without God there is a minority, but one person with God is majority. आमीन। अगर 1000 लोग भी प्रभु के आपके सामने खड़े हो जाएंगे, वो माइनॉरिटी में आएंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ अकेले खड़े हो, आप मेजोरिटी में। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे साथ खड़ा कर सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, लास्ट में आई विल आस्क द वर्शिप टीम टू बी प्रिपेयर्ड। वी विल हैव वन सॉन्ग, ओके? The Lord give me a long life is a dangerous prayer unless you also say, Lord, I surrender this life to you. Lord, give me long life. जिसु मोए के तो लंबा दिन, लंबा लाइफ दीवी, ये तो डेंजरस है हाँ। क्योंकि लंबा लाइफ दे तो अपनी की करोबो मोए ना जाने। But you say, Lord, I surrender this life to you. मोए भी जाने को लगे, मोए भी जानी से तो अपनी की करोबो इसमें लगाता हूँ। Hallelujah. Don't just count your ears, let your ears count for Jesus.
अगर आप डर रहे हो, अगर आप परेशान हो, पता नहीं मैं जीऊंगा नहीं जीऊंगा, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, अगर आप बीमार हो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि पता नहीं मैं नेक्स्ट दिन जीऊंगा नहीं जीऊंगा, प्रभु से कहो, प्रभु ये जीवन तेरा है, इसको अब तू इस्तेमाल। प्रभु मैं कमजोर हूँ, इस शरीर तो मर ही जाएगा, इस शरीर तो खत्म हो जाएगा, मैं तू तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपके लिए एक फाइनल चैलेंज लेके आना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन ये है, अगर आप इस समय जब आपको ये वचन समझ में आया, मैं चाहता हूँ प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु कि प्रभु तू मुझे लॉन्ग लाइफ की जगह एक ब्लेस्ड लाइफ दे, जिसमें मेरे बच्चे और मेरे पेरेंट्स मुझे देख करके आशीष पा सके। वो बच्चे आपको देख के ये नहीं कहे बाबा आमा तो इतनी ग्रेट, ऐसा नहीं। Oh, they are blessed. I'm proud of my parents because they believe in Jesus and they teach me how to believe in Him. ये लगता है। पहला है, are you living for God or just surviving?